Hey guys, hi everyone, good afternoon. Good afternoon, and I welcome you all to lecture number 2 of this fast track batch for September 24 and January 25, जिसका topic है basis of charge and computation of tax liability according to the default tax regime under section 115 BSE. Without wasting any further time, let us have a quick recap of what we did into the previous session before moving on. सबसे पहले पिछले वाले सेशन में हम लोगों ने पढ़ा कि टैक्स क्या होता है. टैक्स इज अ मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज लिवाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्ट, इनकम एंड एक्टिविटी. प्रोडक्ट पर जो टैक्स लगता है, एक्टिविटी पर जो टैक्स लगता है दोस्तों, वो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, जैसे कि जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, ब्ला ब्ला ब्ला. और इनकम पर जो टैक्स लगता है वो होता है हमारा इनकम टैक्स. फॉलोड बाय हमने ये सीखा कि टैक्स लगाया क्यों जाता है, because that is the major source of revenue for the government and the government utilize it for public interest. Followed by there are two types of taxes. One is direct tax, another is indirect tax. Direct tax is the tax on which is levied on income or wealth of a person, the burden of which cannot be shifted. However, indirect taxes are levied on. Indirect taxes किस पर लेवाय करे जाते हैं? Indirect taxes are levied on, फटाफट बताइए, goods and services, the burden of which can be shifted and the final burden is borne by the consumer. Final burden कौन bear करता है? Consumer bear करता है. ये हमारा एक छोटा सा थ्योरेटिकल पोर्शन था. इनडायरेक्ट टैक्सेस पर मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि हाउ द बर्डन इज शिफ्टेड फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर. And because the customer uses the product, he cannot pass on the burden of tax to another person. क्योंकि वो तो खुद ही उस प्रोडक्ट को यूज कर लेता है, वो आगे बेचता ही नहीं है. उसके बाद दोस्तों हम लोग पहुंचे थे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी. बहुत शानदार पॉइंट दोस्तों हमारा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, जिसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट था आपका कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25 अकॉर्डिंग टू द ओल्ड रिजाइम. ओल्ड रिजाइम को अब दूसरे नाम से भी जाना जाता है, विच इज नाउ नोन एज द ऑप्शनल टैक्स रिजाइम, जिसमें 3 स्लैब रेट्स थी. हम लोगों ने तीनों के तीनों स्लैब रेट्स इज व्हाट वी डिड इनटू द प्रीवियस सेशन, स्टार्टिंग विद सबसे पहला सीनियर सिटीजन के लिए, for a resident individual man or woman who is of the age of 60 years but up to 79 years at any time during the previous year, which also includes all those who attain the age of 60 years on the 1st of April of the assessment year, 1st April 2024. इनके लिए पहले 3 लाख रुपए माफ थे, 3 से 5 लाख रुपए 5%, 5 से 10 लाख रुपए 20% and above 10 lakh rupees 30%. Followed by for a super senior citizen, second slab rate for a resident individual man or woman who is of the age of 80 years or more, which again included anyone attaining 80 years on the 1st of April of the assessment year. अगर आप 1st April 2024 को 80 years के होते हो तो भी आपको सुपर सीनियर सिटीजन माना जाएगा, जिनके लिए पहले 5 लाख रुपए माफ थे, 5 लाख से 10 लाख 20%, above 10 lakh 30%. And finally, we moved on to, guys, the third slab rate, which is applicable for all those individuals who do not fall in the first two categories, जिसमें आते हैं resident up to 59 years, non-resident no matter what the age is, followed by HUF, AOP, BOI and every artificial judicial person, जिनके लिए पहले 2.5 लाख रुपए माफ होते हैं, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20% and above 10 लाख 30%. और इन तीनों सिनेरियोज में हमने क्वेश्चंस करे थे लिख लिख कर. तो आई होप गाइस मेरे शुरुआत के 4 से 5 मिनट में हम लोगों ने रिवाइज किया ऑफ द प्रीवियस 1 hour 30 minutes एंड सारे पॉइंट्स क्या क्लिक हो पा रहे थे? अच्छा हाँ, इसके बाद ये, इसके बाद वो, इसके बाद ये, क्या was I able to touch the dots that we did into the previous session, the provision that we did into the previous session? And let's get going with all that energy guys. पूरी जी जान से गाइस करेंगे एवरी डे थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन, थोड़ा सा प्रैक्टिकल पोर्शन, इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि कोई मोनोटनी नहीं है दोस्तों. ऑलराइट, तो स्टार्टिंग विद थ्योरेटिकल पोर्शन, क्योंकि मैं थ्योरी पहले प्रेफर करता हूं, बच्चे एनर्जाइज होते हैं तो थ्योरी वाला पहले करते हैं, फॉलोड बाय दोस्तों प्रैक्टिकल वाला, फॉलोड बाय प्रैक्टिकल वाला. ओके गाइस, आ जाओ भाई. सबसे पहले बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ इनकम टैक्स, आज का हमारा ये वाला सेक्शन. इससे पहले भी एक पॉइंट है दोस्तों,
जो मेरे को पता है यहां पर लिखा हुआ है ये वाला overview of income tax law, do not worry about it, that will also be taken care of. लेकिन आज के सेशन में ओवरव्यू नहीं आएगा गाइस, आज के सेशन में बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ इनकम टैक्स आएगा और उसके बाद आपका आएगा दोस्तों क्या बोलते हैं द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन, द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन। आ जाइए गाइस एवरीबडी, बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ इनकम टैक्स, बहुत ही अच्छी ये 2.5 लाइन्स है एंड दिस इज द रोड मैप फॉर यू गाइस टू कंप्यूट द फर्स्ट मैंडेटरी क्वेश्चन ऑफ 15 मार्क्स। ये 2.5 लाइन में वो रोड मैप लिखा हुआ है दोस्तों, और वो रोड मैप क्या है वो मैं आप लोगों को पढ़ता हूं, फिर डिटेल में मैं समझाऊंगा, फिर उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे गाइस एंड देन वी आर गोना मूव ऑन। कहते हैं द टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ एवरी पर्सन shall be charged to income tax in the next following assessment year at the rates applicable to the relevant assessment year। क्या कहते हैं कि प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम निकाली जाएगी हर एक इंसान की। अब हर एक इंसान में सिर्फ क्या इंडिविजुअल आते हैं या कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, लोकल अथॉरिटीज, HUF सब आते हैं? सर पर्सन की 2 कैटेगरीज होती है। वन इज अ नेचुरल पर्सन, जैसे आप और मेरे जैसे चलते दौड़ते भागते लोग, और बाकी लोग जो चल दौड़ नहीं सकते वो आर्टिफिशियल की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो कहते हैं द टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर हमारे लिए कौन सा मैटर करता है गाइस? हमारे लिए प्रीवियस ईयर कौन सा मैटर करता है? एवरीबडी हैज टू हेल्प मी आउट। द प्रीवियस ईयर 23-24। तो मैं यहां पर इस 2.5 लाइन्स के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को लिखता हूं, important points को लिखता हूं guys, and I would want you guys to help me out in detail in relation to that basis of charge। section 4 इसमें आपका सबसे पहले उन्होंने बोला टोटल इनकम, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज बोली वो बोली प्रीवियस ईयर, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज बोली वो बोली पर्सन, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज बोली दोस्तों असेसमेंट ईयर, एंड इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज बोली दोस्तों रेट्स। अगर आप लोग दोस्तों ये टेबल समझ गए ना जो आज मैं बनाने वाला हूं, ये चार्ट मैं बता रहा हूं 15 नंबर के क्वेश्चन का आपको पता चल जाएगा हाउ द रोड इज टू बी ट्रैवल्ड। ऑलराइट, कई बच्चे इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि TDS की चीजें टोटल इनकम में दिखा देते हैं, इनकम की चीजें टैक्स लायबिलिटी में से माइनस कर देते हैं, एंड दैट इज वेयर वी गो रॉन्ग। तो सबसे पहला the first step that we need to do is to find out the total income of every person। अच्छा, टोटल इनकम कितने हिस्सों में डिवाइडेड है, और क्या टोटल इनकम जानने के लिए, टोटल इनकम निकालने के लिए डू वी नीड टू कंप्यूट रेसिडेंशियल स्टेटस? फटाफट बताइए गाइस, एवरीबडी हैज टू हेल्प मी आउट, everybody has to help me out। total income depends upon residential status, depends upon residential status, हमारा चैप्टर नंबर 2। क्योंकि अगर आप ROR हो, रेसिडेंशियल स्टेटस में अगर आपका ROR आता है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो आपकी दुनिया भर की इनकम भी इंडिया में टैक्सेबल होती है। लेकिन वहीं अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तो आपकी इनकम ओनली रिसीव्ड इन इंडिया एंड अर्न्ड इन इंडिया टैक्सेबल होती है। तो देयरफॉर इट बिकम्स extremely important to identify, to know the residential status in order to compute the total income। तो सबसे पहले total income depends upon residential status, जो अपन चैप्टर नंबर 2 में सीखने वाले हैं, followed by आपके 5 heads of income होता है। सरकार ने जितनी भी इनकम है उसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। Anybody who can take the lead and help me out with the 5 heads? सर सबसे पहला हेड अपन बोलते हैं सैलरी। अगर आपके क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन है जिसमें वो बेसिक सैलरी, DNS अलाउंस, कुछ परक्विजिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स की बात करते हैं,
तो आप क्वेश्चन में वो मत करिएगा जो आपको आता है। पता चले सबसे पहले अपन प्रेजेंटेशन में कैपिटल गेन, सेल ऑफ लैंड करना चालू कर दिया, गलत। दैट इज अ वेरी इनअप्रोप्रिएट वे ऑफ प्रेजेंटेशन। नो 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 नो। सबसे पहले अगर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि मिस्टर राठी इंडिया आए हैं फिर इंडिया चले गए, मिस्टर राठी के दादाजी अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए, आई एम गिविंग यू सम इंफॉर्मेशन टू फाइंड आउट माय रेसिडेंशियल स्टेटस। देन इन द सॉल्यूशन फर्स्ट फाइंड आउट माय रेसिडेंशियल स्टेटस, क्योंकि आप मेरा जब तक रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं निकालोगे मेरी टोटल इनकम कैसे निकालोगे, और जब तक टोटल इनकम नहीं निकालोगे मेरी टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालोगे। तो यू हैव टू फॉलो अ प्रोसेस। अगर दोस्तों आप लोग मैगी बनाते हो तो मैगी बनाने के लिए भी तो आपका प्रोसेस होता है। सबसे पहले आप पतीला निकालते हैं, बर्तन निकालते हैं, यू टेक आउट अ यूटेंसिल, यू ऐड सम वाटर, यू ऐड मैगी। सही बात है कि नहीं? मैगी को फिर आप गैस के बर्नर पे रखते हो, गैस ऑन करते हो, थोड़ा सा मैगी गर्म हो जाता है, यू ऐड मसाला, एंड देन व्हेन इट इज कुक्ड यू टेक इट आउट एंड यू ईट इट। आप क्या ऐसा करते हो कि मैगी जब तक बन रही है आप पूरा मसाला ही चाट गए, पूरा मसाला चाट गया, अब मैगी वहां पे पूरी वाइट पड़ी है, फिर आपने कहा चलो भाई मैगी भी खा लेते हैं, कच्ची मैगी खा रहे हैं, ऐसे वाइट वाली मैगी खा रहे हैं, और फिर कूद कूद के मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं ना, मजा नहीं आएगा दोस्तों। यू आर नॉट गोना एंजॉय दैट मैगी। देयर इज अ प्रॉपर सीक्वेंस, यू गॉट टू फॉलो द सीक्वेंस, यू कांट डू मैगी का ऐसा। हाँ, लास्ट में राठी जी थोड़ा सा बच जाता है, वो वाला तो चाटते हैं ना यार, मिडिल क्लास फैमिली ना, यू गाइस नो हाउ आर वी। पूरा मसाला डालने के बाद मसाला का पैकेट फाड़ते हैं और उसके बाद उसे करते हो कि नहीं करते हो दोस्तों? नहीं, अगर नहीं करते हो तो आपने जिंदगी नहीं जी है। अगर आपने ऐसा काम नहीं किया तो जिंदगी नहीं जी है, करना जरूरी है। हाँ जी गाइस, क्या सिखाओगे बड़े होके अपने बच्चों को कि मैगी कैसे खाते हैं? हाँ जी गाइस, तो सबसे पहले सैलरी, फॉलोड बाय आपका आता है हाउस प्रॉपर्टी, फॉलोड बाय आपका आता है पीजीबीपी, फॉलोड बाय आपका आता है कैपिटल गेन्स, एंड लास्ट आपका आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अगर आप इन पांचों हेड्स को जोड़ देते हैं तो क्या आपकी टोटल इनकम आ जाती है गाइस? क्या आपकी टोटल इनकम आ जाती है? द आंसर इज नो। सर इन पांचों हेड्स को जोड़ने के बाद आपकी टोटल इनकम नहीं आती। इन पांचों हेड्स की इनकम निकालने के बाद, स्मृति ने यस कह दिया था, द आंसर इज नो। इन पांचों हेड्स के बाद हम करते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। अगर किसी और की इनकम हमारी इनकम में जुड़ती है तो हम वो जोड़ते हैं। हम करते हैं लेस, सेट ऑफ लॉसेस। एक बिजनेस में लॉस है, दूसरे बिजनेस में फायदा है, तो हम वो सेट ऑफ करते हैं। अगर पुराने साल के लॉसेस हैं तो वो इस साल की इनकम से सेट ऑफ करते हैं, इफ दे आर अलाउड। और ये सब करने के बाद दोस्तों हमारा क्या निकल कर आता है? हमारा निकल कर आता है ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम। अभी भी टोटल इनकम नहीं आई है गाइस, इसे अपन जीटीआई बोलते हैं। So clubbing के provisions have to be taken care of while we are computing income under the 5 heads. Set off के provisions needs to be taken care of जब हम पांचों heads की इनकम निकाल रहे होते हैं। उसके बाद we arrive at GTI, gross total income, and GTI में से माइनस करते हैं deductions, less deductions under chapter 6A, जिसमें आपका 80C से 80U वाले सारे सेक्शंस आते हैं, एंड सेक्शन 10AA वाला भी आता है दोस्तों, एंड सेक्शन 10AA। लेकिन हाँ, डिडक्शन जो मिलते हैं वो ज्यादातर उन लोगों को मिलते हैं जो कि ऑप्शनल टैक्स रिजाइम फॉलो कर रहे होते हैं। डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में सिर्फ 3 सेक्शंस में आपको अलाउड है। डिटेल डिस्कशन विल फॉलो इन टुडेज सेशन इटसेल्फ। तो डिडक्शंस अंडर सेक्शन 10AA एंड डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C से 80U देते हैं। और उसके बाद वेयर डू वी अराइव गाइस? हम कहां पहुंचते हैं? फाइनली हम कहां पहुंचते हैं? वी अराइव एट टोटल इनकम। तो दोस्तों अभी तक क्या मैंने कोई भी टैक्स की बात करी? अभी सिर्फ मेरी कोशिश किस तरफ थी? we were trying to find out the total income of a person.
हम क्या कोशिश कर रहे हैं दोस्तों? वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट टोटल इनकम। और टोटल इनकम किस पे डिपेंड करती है? टोटल इनकम डिपेंड्स अपॉन द रेसिडेंशियल स्टेटस। एवरीबडी हैज टू कीप दैट इन माइंड। मजा आया यहां तक? अब आगे बढ़ते हैं। टोटल इनकम हमें कौन से साल की निकालनी है? टोटल इनकम हैज टू बी फाउंड आउट फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24 इन असेसमेंट ईयर 24-25। देखो 23-24 वो वाला साल है जिस साल हम एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू अर्न एज मच एज पॉसिबल। हम ज्यादा से ज्यादा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी ज्यादा कमाई करेंगे भाई उतना ही ज्यादा अच्छा है हर एक इंसान के लिए। लेकिन क्योंकि 23-24 एक कंटिन्यूइंग ईयर है दोस्तों, हम क्या हर रोज अपनी कमाई करते हैं और हर रोज अपनी कमाई पर जाकर टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को? सरकार ने कहा नहीं। राठी जी, मोदी जी मेरे से कहते हैं हमारा आपकी शक्ल देखने का हर रोज कोई इच्छा नहीं है। द फीलिंग इज म्यूचुअल। मोदी जी माना है आप प्राइम मिनिस्टर है अपने देश के, इसका मतलब ये नहीं है हम अपनी बीवी की हर रोज शक्ल देखना चाहते हैं, अपने बच्चे की शक्ल देखना चाहते हैं, आपकी क्यों देखना चाहेंगे? सही बात है नहीं? तो सरकार कहती है कि राठी जी 1 साल पूरा होने दो, 1 साल पूरा होने दो। कौन सा साल? 23-24। और 23-24 में आपने जितनी भी कमाई करी फ्रॉम द 1st of April 2023 till 31st of March 2024, ये कंप्यूट करो। लेकिन ये कंप्यूट क्या मैं 31 मार्च की रात को बैठकर ही करूंगा? नहीं ना यार। Can anybody compute his entire income for 1 year in one night? The answer is no, and that is why the government gives you time. सरकार आपको टाइम देती है कि अभी आपका ये साल खत्म हुआ है, अगले साल में इसमें आप इनकम कंप्यूट करना। तो 23-24 वो वाला साल जिस साल आप इनकम अर्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इनकम अर्न कर रहे हैं। और 24-25 वो वाला साल जब आप इनकम कंप्यूट कर रहे हैं। तो 24-25 में हम कंप्यूट करते हैं इनकम कौन से साल की? प्रीवियस ईयर की, पिछले साल की, 23-24 की। ऑलराइट गाइस, किसकी करते हैं? सर हर एक पर्सन की करते हैं। करेक्ट। पर्सन को सरकार ने कितने हिस्सों में तोड़ा? जैसा कि मैंने भी अभी आप लोगों को बताया गाइस। सबसे पहले नेचुरल एंड दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल में कौन आता है गाइस? नेचुरल में हु फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ नेचुरल पर्सन? ओनली वन पर्सन, इंडिविजुअल। और आर्टिफिशियल में कौन आता है? एवरी अदर पर्सन फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ आर्टिफिशियल। HUF, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, इंक्लूडिंग LLP, ब्रैकेट में LLP भी लिख देता हूं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, AOP, BOI, Association of Persons, Body of Individuals, Local Authority, etc. So every person which is other than an individual is an artificial person, and everybody earns income. तो हर एक इंसान की प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम डिपेंडिंग अपॉन द रेसिडेंशियल स्टेटस निकाली जाती है इन द असेसमेंट ईयर। अब असेसमेंट ईयर में जब हम टोटल इनकम निकालते हैं तो टोटल इनकम निकालने के बाद व्हाट इज द प्रोसेस? सर टोटल इनकम निकालने के बाद यू अप्लाई रेट्स, और रेट्स लगाते हैं तो आपका क्या निकल कर आता है? आपका निकल कर आता है टैक्स, विच इज नोन एज इनकम टैक्स। अब ये रेट्स जो हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिजाइम दैट यू आर फॉलोइंग, डिपेंडिंग अपॉन द एज, डिपेंडिंग अपॉन द रेसिडेंशियल स्टेटस, एंड डिपेंडिंग अपॉन द इनकम ऑल्सो। there are few incomes जिन पर स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगता है, जैसे कि लॉटरी। व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल ऑन लॉटरी? ये हम कल के सेशन में सीखेंगे गाइस। कल के सेशन में हमारा स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्सेस आने वाले हैं। व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल ऑन लॉटरी? फटाफट बताइए। व्हाट इज द टैक्स लायबिलिटी? व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स on listed equity shares on which STT is paid?
जिसे अपन बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A। वेल डन। लॉटरी पर लगता है 30%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A पर लगता है 15%, 15%। तो देयर आर स्पेशल रेट्स ऑल्सो, देयर आर स्पेशल रेट्स ऑल्सो। शिखा 20% नहीं 15% बेटा। तो जब आप अपनी इनकम निकालते हैं और इनकम पर रेट्स लगाते हैं तो आपका निकल कर आता है इनकम टैक्स। ऑलराइट, यहां पर ध्यान दीजिएगा, रेट्स लगाते वक्त अगर आपकी इनकम बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट है, एक लिमिट से ज्यादा है, तो क्या टैक्स लगता है कि एडिशनल अमाउंट ऑफ टैक्स लगता है, विच इज नोन एज डैश। fill in the blank, fill in the blank, come on everybody participate. If your income exceeds beyond a certain limit, you have to pay additional amount of tax which is known as surcharge. If your income is up to a specified limit, then the government allows you dash under section 87A. फटाफट बताइए, dash under section 87A, it is rebate under section 87A. And health and education cess is applicable in all the cases, is applicable in all the cases at the rate -%। फटाफट बताइए, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितने परसेंट से लगता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितने परसेंट से लगता है गाइस, 4%। एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग? तो ये सारी चीजें हम इनकम टैक्स निकालते वक्त ध्यान रखते हैं। ऑलराइट गाइस, तो मैं यहां पर स्टार मार्क कर देता हूं इनकम टैक्स के आगे कि कीप इन माइंड पहला, नंबर 1 स्पेशल रेट ऑफ टैक्स, दूसरा सरचार्ज ऑब्लिक रिबेट, तीसरा HEC @ 4%। ये तो हर केस में लगता ही लगता है। अच्छा, जब आपका टैक्स निकल जाता है तो इसमें से ध्यान से देखिएगा, दिस इज द टैक्स दैट you have calculated, and out of the income tax, if any amount of tax has been already paid to the government in the form of TDS and TCS, वो आप यहां माइनस करते हैं। इन द फॉर्म ऑफ एडवांस टैक्स, वो आप यहां माइनस करते हैं। इन द फॉर्म ऑफ एनी रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1), रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1), यहां माइनस करते हैं। एनी AMT क्रेडिट, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स क्रेडिट, वो आप यहां माइनस करते हैं। और फाइनल अमाउंट is what we need to pay to the government guys। ये वाला अमाउंट, जो लास्ट अमाउंट है, जो मैंने XXX लिखा है, that is what we pay to the government। तो TDS आप कहां माइनस करते हो? TDS आप सरचार्ज से पहले माइनस नहीं करते, TDS आप रिबेट से पहले माइनस नहीं करते। पहले अपनी जैसी टैक्स लायबिलिटी है वो पूरी निकाल लीजिए, पूरी की पूरी टैक्स लायबिलिटी निकाल लीजिए। उसके बाद जब फाइनल टैक्स लायबिलिटी निकल जाए कि ये हमें सरकार को देना है, उसमें से माइनस करिए जितना हम ऑलरेडी दे चुके हैं, उसमें से माइनस करिए जितना हम ऑलरेडी दे चुके हैं। Is everybody now clear about the roadmap that we need to follow in order to solve out those 15 नंबर का क्वेश्चन? 15 नंबर का क्वेश्चन ये ही शुरुआत से लेके लास्ट तक जाता है। जो फर्स्ट मैंडेटरी क्वेश्चन होता है, दैट इज ऑल अबाउट दिस पॉइंट। वो आपको क्या इंफॉर्मेशन देते हैं? 3-4 हेड की इनकम दे देंगे, बीच में सेट ऑफ लॉसेस डाल देंगे, 2-3 डिडक्शंस के पार्ट डाल देंगे, यही करते हैं ना वो। तो फॉलो द प्रोटोकॉल। यू नीड नॉट सॉल्व आउट एवरी पॉइंट देन एंड देयर। आपको पता है अगर TDS का पॉइंट आया तो TDS का पॉइंट मेरा कब आएगा काम में? TDS का पॉइंट तब आएगा जब मेरी टोटल टैक्स लायबिलिटी निकल जाएगी, और टैक्स लायबिलिटी से मेरे को बस TDS माइनस करना है। TDS, हाई TDS, TDS कैसे होगा, अब तो छोड़ना ही पड़ेगा। अरे भाई, TDS का तो छोटा सा रूल है, ये हाय हाय हो करने से क्या होगा? अगर आपका पहला स्टेप रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है तो क्वेश्चन में बस ये इंफॉर्मेशन ढूंढने की, हैंड पिक करिए
जो रेसिडेंशियल स्टेटस से मैटर करती है। जब रेसिडेंशियल स्टेटस से मैटर करती है, जब रेसिडेंशियल स्टेटस हो गया, उसके बाद आप अपने 5 हेड्स की इनकम निकालिए स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन में सैलरी की इंफॉर्मेशन है, तो चलो भाई सैलरी की इनकम निकालते हैं। फॉरगेट ऑल अदर हेड, फॉरगेट ऑल ऑफ द पॉइंट्स। फिर आता हाउस प्रॉपर्टी, फिर आता पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेस। फिर जब आपकी जीटीआई निकलती है आफ्टर अप्लाइंग इफ देयर आर एनी स्टेप्स रिलेटिंग टू क्लबिंग एंड सेट ऑफ, जीटीआई निकलती है, तो फिर ये देखो डिडक्शंस कौन सी माइनस हो सकती। वहां पर कई बच्चे क्या करते हैं, जीटीआई में से एडवांस टैक्स माइनस, कह रहा राठी जी कर कर आ गए माइनस। हाँ एडवांस टैक्स, मैंने कहा गुड गुड। टैक्स लायबिलिटी में से, कह रहे नहीं जीटीआई में से। आपने माइनस करने बोला था। मैंने कहा अगर तुम्हारे पूरी बॉडी में से ऐसे गला काट दिया जाए, माइनस कर दिया जाए तो चलेगा? कह रहा अरे राठी जी कैसी बातें करते हैं, यू हैव टू फॉलो द प्रोटोकॉल ना। सर कैन यू प्रोवाइड दी स्मॉल हैंड रिटन नोट्स? नो विवेक, ये आपको हैंड रिटन नोट्स मेरे साथ साथ बनाने हैं, और अगर अभी नहीं बना सकते हैं तो इट इज ऑल्सो फाइन, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पीड में लिखता हूं, साथ साथ बोलता भी जाता हूं, तो आपको सुनना भी है, समझना भी है। तो ये हैंड रिटन नोट्स आपके वैसे इस नोट्स में हैं। ये देखो, आ जाओ भाई। इनकम ये आपकी, ये देखिए गाइस, पढ़िए। इनकम सेक्शन 224, और ये वो आपके 5 हेड्स, जिसमें सबसे पहला सैलरी। सैलरी में क्या क्या आता है? एनी बेनिफिट दैट इज हैपनिंग फ्रॉम द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय, द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट or perquisite in lieu of salary under the taxable under the head salaries, any allowances granted to meet the expenses in performance of an office. हाउस प्रॉपर्टी में क्या आता है? जब आप अपनी बिल्डिंग को रेंट पे चढ़ाते हो। पीजीबीपी में क्या आता है? आपका कोई भी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम। कैपिटल गेन्स में क्या आता है? जब आप कोई भी अपना कैपिटल एसेट बेचते हो, आपने लैंड बेच दी, बिल्डिंग बेच दी, शेयर्स बेच दी, ज्वेलरी बेच दी, वो आपका कैपिटल गेन्स चैप्टर में आता है। एंड बची कुछ इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है, जैसे कि डिविडेंड, लॉटरी, इंटरेस्ट, गिफ्ट। ऑलराइट गाइस, एंड इफ यू टॉक अबाउट द रोड मैप, यू ऑल्सो हैव अ रोड मैप। ये देखो, everything is there in the notes guys, everything is there in the notes. आ जाओ। Process of computation of total income and tax liability. I am moving away, you just need to read it up. मैं पढ़ा चुका हूं। द होल बेसिस ऑफ चार्ज, जो पूरा बेसिस ऑफ चार्ज है वो यही। मैं साइड हट जाता हूं गाइस, एक बार धीरे धीरे रीड आउट करिएगा, आप लोगों को मजा आएगा गाइस। मैं साइड में ही हूं, पढ़िए। सबसे पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा क्या है? क्या यही था जो हम लोगों ने बेसिस ऑफ चार्ज में पढ़ा? मूविंग ऑन गाइस, अब गाड़ी धीरे धीरे नीचे बढ़ेगी। इधर देखिए, मैं नीचे कर रहा हूं। अब पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा पॉइंट देख लिया, क्लबिंग ऑफ इनकम एंड सेट ऑफ लॉसेस। उसके बाद अपन कहां पहुंच जाते हैं दोस्तों? जीटीआई पर। जीटीआई कैसे निकलती है? पांचों हेड्स की इनकम प्लस क्लबिंग माइनस सेट ऑफ। देखिए गाइस, पढ़ते चलिए, पढ़ते चलिए, पढ़ते चलिए दोस्तों। डन गाइस, ये देखिए एप्लीकेबल रेट्स ऑफ टैक्सेस ऑन टोटल इनकम। अब ये 7th पॉइंट पढ़ते चल रहे हैं ना साथ साथ? ये वही वाले पॉइंट्स है दोस्तों। जब कोई चीज दोस्तों, एवरीथिंग हैज टू बी डन इन 2 वेज। पहला, एक पॉइंट को मैं समझाऊंगा, और दूसरा कि उस पॉइंट को आप खुद रीड आउट करेंगे, समझेंगे, और अपन साथ में फिर क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे। ये देखिए गाइस, 7th पॉइंट, एप्लीकेशन ऑफ रेट ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम डिपेंडिंग अपॉन द एज, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड रिजाइम, आपके रेट ऑफ टैक्स बदल जाते हैं। स्पेशल रेट्स आर आल्सो एप्लीकेबल लाइक लॉटरी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। Surcharge, rebate and health and education says guys, surcharge is applicable where the income exceeds a certain limit.
रिबेट इज ग्रांटेड वेयर इनकम इज अप टू अ सर्टेन लिमिट, एंड HEC तो 4% लगता ही लगता है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, पहले HEC लगा देंगे फिर सरचार्ज, पहले HEC लगा देंगे फिर रिबेट ना, पहले हमेशा सरचार्ज या रिबेट रहेगा एंड देन HEC। क्या दोस्तों, मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन, क्या कोई ऐसा सिनेरियो हो सकता है जहां ना सरचार्ज लगे ना रिबेट? इज देयर अ पॉसिबिलिटी जहां ना सरचार्ज एप्लीकेबल है क्वेश्चन में और ना ही रिबेट एप्लीकेबल है? ऐसा क्या कुछ हो सकता है क्या? कोई ऐसा सिनेरियो बन सकता है क्या? हाँ जी, फटाफट बताइए। द आंसर इज यस सर, बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। अगर अपन ओल्ड रिजाइम की बात करें, ओल्ड रिजाइम की बात करें, तो इनकम अगर आपकी 5 लाख रुपए से ज्यादा है और 50 लाख रुपए के बीच में, 5 लाख से ज्यादा और 50 लाख की, अगर सर किसी की इनकम 30 लाख है तो ना उस पर सरचार्ज लगेगा ना उसे रिबेट मिलेगा। एंड लाइकवाइज फॉर द न्यू रिजाइम, न्यू रिजाइम में रिबेट 7 लाख रुपए तक है, सरचार्ज वही 50 लाख के बाद लगना चालू हो जाता है। तो ऐसा हो सकता है। ओके, नेक्स्ट, TDS एडवांस टैक्स एंड AMT क्रेडिट, ये बताइए गाइस। TDS एडवांस टैक्स एंड AMT क्रेडिट, अब जब आपने पूरी टैक्स लायबिलिटी निकाल ली तो TDS, TCS, AMT क्रेडिट, एडवांस टैक्स, ये सब क्या है? दीज आर जस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ टैक्सेस दैट हैज ऑलरेडी बीन पेड टू द गवर्नमेंट, जो ऑलरेडी सरकार के पास पहुंच चुका है। तो इन दैट केस ये सब क्या करा जाएगा? ये माइनस किया जाएगा। कहते हैं एडवांस टैक्स पेड, TDS, AMT क्रेडिट इज सेट ऑफ from the tax liability computed at stage A to arrive at final tax liability, and the final tax liability वो XXX था जो अपने को जाके सरकार को पे करना है। ऑलराइट सर, अगर फाइनल टैक्स लायबिलिटी नेगेटिव में निकले, मतलब जो हमने एडवांस डिपॉजिट करवा दिया है वो ज्यादा है, तो इन दैट केस यू कैन आस्क फॉर रिफंड फ्रॉम द गवर्नमेंट। फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, ITR फाइल करनी है। कहते हैं ITR इज द डिक्लेरेशन ऑफ इनकम बाय द असेसी। क्या दोस्तों आपको पता है कि आपको असेसमेंट ईयर में ड्यू डेट तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरनी पड़ती है, विच इज जनरली 31 जुलाई एंड 31 अक्टूबर। हाँ या ना? तो जब आप अपनी पूरी टैक्स लायबिलिटी निकाल लेते हैं, TDS PDS माइनस कर लेते हैं, रिमेनिंग अमाउंट जमा करा देते हैं, उसके बाद यू विल हैव टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। आप सरकार के पास इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराते हैं। ITR is the declaration of income by the assessee in a specified format to the income tax department by a specified date, जो चैप्टर नंबर 14। क्या अब आपका बेसिस ऑफ चार्ज क्लियर हुआ? इससे जुड़े हुए दोस्तों एक दो छोटे मोटे पॉइंट्स हैं, उन्हें और कवर अप कर लेते हैं। यहां पर ये देखिए, प्रीवियस ईयर, एज द नेम सजेस्ट, प्रीवियस ईयर का क्या मतलब है? असेसमेंट ईयर से आगे वाला या असेसमेंट ईयर से पीछे वाला? सर नाम में ही लिखा है पीछे वाला, प्रीवियस। तो असेसमेंट ईयर 24-25, प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 23-24। तो कहते हैं प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर immediately preceding the assessment year, immediately preceding the assessment year। कहते हैं टैक्स इज पेबल on the income earned during the previous year and it is assessed in the immediately succeeding financial year, जिसे अपन क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर। अब आते हैं दोस्तों कुछ हमारे छोटे मोटे नोट्स, और ये नोट्स क्या बोलते हैं दोस्तों? सबसे पहला, प्रीवियस ईयर फॉर न्यूली सेटअप बिजनेस। लेट्स से गाइस, मैंने कोई बिजनेस चालू किया ऑन द 14th of November 2023, तो मेरा एक साल क्या 14th November 2023 से लेकर 13th November 2024 तक जाएगा? द आंसर इज नो। प्रीवियस ईयर कैन बी अ पीरियड ऑफ लेस देन 12 months, and previous year in this scenario, when you start up a new business in middle of a year, it will start from the date of setting up of the business, which is 14th of November 2023 से लेकर कब तक? 31st March 2024।
The previous year for newly set up business shall start from the date of setting up of the business to the end of the financial year in which business was set up. And financial year हमेशा end कब होता है? 31st March. तो दोस्तों इस चीज का ध्यान दीजिएगा, सर टीडीएस ऑलरेडी एडेड होती है टैक्स लायबिलिटी में, तो हम टीडीएस माइनस करते हैं लास्ट में। अवानी बेटा, ये किसने कहा कि टीडीएस आपके टैक्स लायबिलिटी में एडेड होती है? टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करी जाती है डिपेंडिंग अपॉन द टोटल इनकम दैट यू हैव अर्न्ड। अवानी बेटा, हु सेड दैट कि आपकी टीडीएस टैक्स लायबिलिटी में एडेड होती है? मैं उससे जुड़ा हुआ भी एक एग्जांपल लेता हूं अभी आपके सामने, तो यू विल गेट टू नो अबाउट इट। ऑलराइट, तो सबसे पहले इसको करते हैं, ये वाला पहला नोट करते हैं, फिर अवानी का मैं एग्जांपल लेता हूं। प्रीवियस ईयर फॉर न्यूली सेटअप बिजनेस विल स्टार्ट जब से आपका बिजनेस सेटअप हुआ, और एंड कब होगा? जब आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ। इफ अ सोर्स ऑफ इनकम comes into existence in the said financial year, then the previous year will commence from the date on which the source of income newly comes into existence to the end of the financial year. Let's say दोस्तों मैंने 1 दिसंबर को एक एफडी करवाई, 1 दिसंबर को एक एफडी करवाई फॉर अ स्पैन ऑफ 2 years। अब मेरे को एफडी तो 2 साल बाद मैच्योर होगी, लेकिन क्या इस साल एफडी का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा? जी हां, किया जाएगा फॉर अ स्पैन ऑफ 4 months, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। ऑलराइट, तो अगर आपकी कोई ऐसी इनकम अराइज होती है फॉर द फर्स्ट टाइम जो कि नहीं थी पहले, तो इन दैट केस उसका भी प्रीवियस ईयर विल बी फ्रॉम द डेट जब से वो इनकम आना चालू हुई to the end of the financial year, which is always 31st March. अब अवानी बेटा का मैं यहां पर, सर आई एम कंफ्यूज कि टीडीएस माइनस क्यों होता है? क्योंकि टीडीएस इज एन एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स। टीडीएस एक एडवांस टैक्स के तौर पर सरकार के पास जाता है। लेट्स से इधर ध्यान से सुनना, मैं आपसे बहुत आसान सी बात करता हूं कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा और आपने कहा कि राठी जी मैं सीए फाइनल भी आपसे पढ़ूंगी, मैं अगले साल से सीए फाइनल पढ़ाना चालू करूंगा गाइस। अब मैंने कहा बेटा अभी सीए फाइनल के लिए ना एक ऑफर निकला है कि जो बच्चे सीए इंटरमीडिएट में मेरे से पढ़े हैं और सीए फाइनल में मेरे से पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं 30% एडिशनल डिस्काउंट दूंगा अगर वो मेरे पास 5,000 रुपए की एक एडवांस फीस जमा करा देते हैं। कितनी जमा करा देते हैं? 5,000 रुपए की एडवांस फीस जमा कराएंगे तो फाइनल की जो फीस होगी ना उसमें 30% का डिस्काउंट मिलेगा। अब लेट्स से मैंने फाइनल की फीस 10,000 रुपए रखी, फाइनल की फीस 10,000 रुपए रखी, और अवानी ने आके कहा कि राठी जी याद आया, मैं वही बच्ची इंटरमीडिएट में आपसे पढ़ी थी। मैंने कहा हाँ जी, आपके लिए फ्लैट 30% का डिस्काउंट, 3,000 रुपए माइनस हुआ तो आपकी फीस बनती है 7,000 रुपए। और क्या अवानी आप 7,000 रुपए मेरे को और दोगी, या अब आप मेरे से कहोगी राठी जी भूल गए क्या, मैंने आपको एडवांस दिया था 5,000 रुपए का, तो अब मैं आपको 2,000 रुपए ही तो दूंगी। अगर आप मेरे को 7,000 और दे दो और 5,000 आप पहले दे चुकी हो तो 7 और 5 तो 12,000 हो जाएगा। जबकि नॉर्मली बच्चा 10,000 दे रहा है तो आप 12 तो नहीं दोगे ना। तो 5,000 क्या है? 5,000 क्या है दोस्तों? 5,000 क्या है? इज एन एडवांस डिपॉजिट जो आप मेरे आगे की पेमेंट में से माइनस करोगे। लाइकवाइज टीडीएस, एडवांस, ये सब क्या है? दीज आर एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स। संजीवनी, आपने रेज किया हैंड, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? आई हैव इनवाइटेड यू। संजीवनी शेखावत, everyone clear about it?
अब क्लियर हुआ वानी बेटा? अब आप कहते हो लेट्स से, अब ध्यान से देखना, मैंने एक एफडी करवाई, एफडी पर मेरे को इंटरेस्ट मिला 2 लाख रुपए का इस साल। क्या एफडी इंटरेस्ट पे, मेरी बात ध्यान से सुनना, आई डू नॉट हैव एनी अदर इनकम, मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल बना रहा हूं। क्या बैंक ने एफडी इंटरेस्ट, क्योंकि ये नॉर्मली 40,000 से ज्यादा है, तो क्या बैंक ने टीडीएस काटा होगा अंडर सेक्शन 194A एट द रेट 10%? हाँ जी, बैंक ने टीडीएस काटा 20,000 का और बैंक ने मुझे दिया 1,80,000 रुपए का इंटरेस्ट। ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत ही सिंपल एग्जांपल, मेरा इंटरेस्ट है 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए के एफडी इंटरेस्ट पे दोस्तों 10% टीडीएस काटा गया बाय द बैंक, और 20,000 टीडीएस कटने के बाद मेरे को 1,80,000 रुपए मिला। मेरी इनकम 2 लाख रुपए ही है, my income is 2 lakh rupees, I do not have any other income. What is the tax liability on that 2 lakh rupees? Everybody has to answer me. मेरी 2 लाख रुपए पर क्या टैक्स लायबिलिटी होगी, चाहे मैं ओल्ड रिजाइम फॉलो करूं या न्यू रिजाइम फॉलो करूं? सब लोग बताओ, फटाफट बताओ, व्हाट विल बी माय टैक्स लायबिलिटी ऑन दोस 2 लाख रुपीज? इट विल बी 0, क्योंकि चाहे ओल्ड रिजाइम फॉलो करूं तो पहले 2.5 लाख रुपए माफ होते हैं, न्यू रिजाइम फॉलो करूं तो पहले 3 लाख रुपए माफ होते हैं। राठी जी, आपका तो कोई टैक्स लायबिलिटी था ही नहीं। अब मैं कहूंगा अरे मेरा कोई टैक्स नहीं था और बैंक वालों ने मेरा 20,000 रुपए मोदी जी को जाके जमा करा दिया, तो बिकॉज माई टैक्स लायबिलिटी, मेरी टैक्स लायबिलिटी आप लोगों ने ही निकाली कि 2 लाख रुपए की इनकम पर कोई टैक्स लायबिलिटी होती ही नहीं है, नील। तो जितना मेरा टीडीएस कटा था वो क्या 0 में से माइनस किया जाएगा? हाँ जी। और जब आंसर नेगेटिव में निकलेगा तो इसको क्या बोलेंगे गाइस? दिस विल बी कॉल्ड एज रिफंड। दिस इज व्हाट आई एम गोना आस्क द गवर्नमेंट, आई एम गोना आस्क मोदी जी टू रिफंड मी, टू रिटर्न इट टू मी। फाइल आईटीआर एंड क्लेम रिफंड, बिल्कुल सही। ऑल राइट, तो टीडीएस इज नथिंग बट एन एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट। आ जाओ गाइस, ये वाला पॉइंट, प्रीवियस ईयर फॉर अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम, दिस इज व्हाट वी आर गोना डू इनटू द नेक्स्ट सेशन। क्योंकि अगर मैंने ये करवाया उसके बाद 5 पॉइंट्स और हैं दोस्तों, वो करवाए तो फिर वी आर गोना स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम। ये मैं अगले सेशन में करवाऊंगा, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन इज व्हाट आई वुड विश टू एंड विद इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स, और ये अगले 5 मिनट में खत्म नहीं होगा, लेकिन ये पर्सन वाला खत्म हो जाएगा। एक बार रीड आउट करिए गाइस, पर्सन में कौन कौन आता है? एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल कौन सा पर्सन है दोस्तों? नेचुरल। और बाकी सब फ्रॉम बी टू जी ये सब कौन है? आर्टिफिशियल पर्सन। अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अ कंपनी, अ फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी, लोकल अथॉरिटी, an AOP or BOI, association of persons, a body of individuals, whether incorporated or not, and every other artificial judicial person not covered above. तो दोस्तों बी टू जी ये कौन है? हमारे आर्टिफिशियल पर्सन है। एवरीवन क्लियर अबाउट इट? यहां तक मजा आया गाइस? वी आर हाफ वे थ्रू द सेशन। अगर मजा आया तो गाइस एक बार थम्स अप बटन दबा दें, मतलब चैट बॉक्स में थम्स अप डाल दें, कि इमोजी डाल दें गाइस, and then I'm gonna move forward guys. I'm gonna move forward guys to the tax liability according to the default tax regime guys. Okay guys, आ जाओ guys, आ जाओ भाई नीचे। एक बच्चे ने हाथ उठाया। गाइस प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल, अगर आप गलती से बार बार उसको चेक मत करिए। शिखा, हेलो। हेलो, यस शिखा बोलिए।
सर कोई वो ना, वही टीडीएस वाला जो था ना, वही समझ नहीं आ रहा था, आ गया है। अच्छा, मतलब आपने इत्तला करने के लिए फोन किया है कि टीडीएस वाला समझ नहीं आ रहा था, अब आ गया है? नो सर, वो नेटवर्क प्रॉब्लम था, वो टच हो जा रहा है बार बार फोन से। नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम सॉरी था। सर। मैं समझा नहीं, समझ में आया या नहीं आया है? हाँ सर, वो समझ आ गया। मैंने जब वो टैप किया था उससे पहले ही आप उसको एक्सप्लेन कर रहे थे, बट वो टैप जो हुआ वो बाद में चला गया, नेटवर्क की अच्छा, वजह से। ओके ओके, तो समझ आ गया है फाइनली। चलो, गुड। आई एम हैप्पी अबाउट इट एंड थैंक यू शिखा। थैंक यू। All right, guys. चलो जी. Now we are moving on to the default tax regime. बहुत ही शानदार। हाँ जी गाइस, जानदार। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं स्पेशली व्हेन मई में दोस्तों डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम का क्वेश्चन नहीं था। मई में डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम का क्वेश्चन नहीं था, तो अब पूरा पूरे आने की प्रोबेबिलिटी है गाइस, पूरे पूरे आने की प्रोबेबिलिटी है। इधर देखिएगा, if the individual, irrespective of the age or residential status, एक सेकेंड मेरे को ना गाइस बंद करना पड़ेगा, यहां से चालू करूंगा, वो अटक गया। हाँ जी, if the individual, irrespective of the age or residential status, or HUF, AOP, BOI, and every artificial judicial person who opts to be taxed under the न्यू रिजाइम। अब इस न्यू रिजाइम को क्या नाम दिया गया है गाइस? व्हाट डू वी स्वीटली कॉल द न्यू रिजाइम एज? इसे अपन क्या बोलते हैं? फटाफट एवरीबडी हैज टू पार्टिसिपेट इनटू द चैट बॉक्स। दिस इज नाउ नोन एज द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम। इसे क्या बोला जाता है? डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम बोला जाता है। तो इफ द इंडिविजुअल, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज, क्योंकि देयर इज ओनली वन स्लैब रेट। ऑप्शनल टैक्स रिजाइम ओल्ड रिजाइम में 3 स्लैब रेट थी, उसमें एज और रेसिडेंशियल स्टेटस मैटर करता था। यहां पर तो एक ही स्लैब रेट है, तो यहां पर एज और रेसिडेंशियल स्टेटस मैटर नहीं करता। HUF, AOP, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, BOI भी डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम फॉलो कर सकते हैं। और व्हाट इज द रिजाइम गाइस? व्हाट इज द रिजाइम? पहले 3 लाख रुपए माफ, फर्स्ट 3 लाख रुपीज एग्जेम्प्ट, 3 लाख से 6 लाख, मतलब फॉर द नेक्स्ट 3 लाख रुपीज कितना लगेगा? 5%। उसके बाद 6 लाख से 9 लाख, गाड़ी दोस्तों 3 लाख का पहाड़ा सिखा रहे हैं, टेबल ऑफ 3 लाख रुपीज। 3 लाख से फिर अगेन नेक्स्ट 3 लाख रुपीज एट द रेट 10%। 9 लाख से 12 लाख, नेक्स्ट 3 लाख रुपीज एट द रेट 15%। 12 लाख से 15 लाख, मतलब फॉर एवरी 3 लाख रुपीज देयर इज अ चेंज ऑफ 5%। अगेन नेक्स्ट 3 लाख रुपीज, कितना गाइस? 20%। एंड वंस यू क्रॉस 15 lakhs, एक बार 15 लाख रुपए क्रॉस हो जाए, then what is going to be the rate of tax that is going to be made applicable above 15 lakhs guys? जितनी इनकम आपकी 15 लाख से ज्यादा है, यहां पर 25 नहीं आएगा, यहां पर डायरेक्टली 30%। अभी तक 5% का चेंज हो रहा था ना गाइस, अभी तक 5% का चेंज हो रहा था। फर्स्ट 3 लाख 0, नेक्स्ट 3 लाख 5%, next 3 lakh 10%, next 3 lakh 15%, next 3 lakh 20%, and anything above 15 lakhs. तो let's say if your income is 16 lakhs, तो 15 लाख से ज्यादा कितनी है? 1 लाख। उस 1 लाख पर कितना परसेंट लगेगा? 30% टैक्स लगेगा। ऑलराइट गाइस, लेकिन बातों में इतना मजा नहीं है जितना कर्म में मजा है, जितना क्वेश्चन करने में मजा है। एंड लेट्स गेट गोइंग। क्वेश्चन नंबर 11। एक केस मैं कराऊंगा, 2 केस आपके, 1 मेरा 2 आपका, 1 मेरा 2 आपका। मैं कराऊंगा दूसरा पटियाला एंड सन्स वाला।
Compute the tax liability in the following cases, assuming the individual wishes to opt for the new regime under section 115 BAC, या opt for default regime under section 115 BAC. Patiala and Sons HUF having an income of 12,30,000 rupees. Patiala and Sons HUF की इनकम कितने की है? 12,30,000 रुपए की है. आ जाओ गाइस, लिख कर करेंगे गाइस आप लोगों को भी दोस्तों. पटियाला एंड सन्स HUF अगर 12,30,000 रुपीस की है, लिखना चालू कर दें. फर्स्ट 3 लाख रुपीस नील, नेक्स्ट 3 लाख रुपीस एट द रेट 5%, 15,000. नेक्स्ट 3 लाख रुपीस at the rate 10%, 30,000. Next 3 lakh rupees at the rate 15%. लिख कर करेंगे. Everybody has to write it down. The more we write it down, the better it will be. लिखने की स्पीड बढ़ेगी, प्रेजेंटेशन बेटर होगा. 12 लाख तक पहुंच गए. अब रिमेनिंग 30,000 ही बचा. 15 लाख तक तो पहुंचने का चांस ही नहीं था. 30,000 पे लगेगा 20%, निकल कर आएगा 6,000 रुपए. गाइस कितना आया टोटल निकल कर, फटाफट बताइए. 96,000 रुपीस. हाँ जी गाइस, 96,000 रुपीस. हेल्थ एंड एजुकेशन से इसके बारे में कुछ बोला है? यस, इग्नोर करने बोला है. इग्नोर HEC, इग्नोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. नाउ देयर आर 2 more scenarios, Mr. Shantanu and Mr. Tandon. फटाफट do it guys. I am giving you 60 seconds each for both the cases. लिख के करना है. कैलकुलेटर पे तो सब बच्चे फटाफट कर ही देते हैं. Everyone has to write it down. Everybody has to pen it down. Last 1 minute to go. Come on guys, everyone. Done. Yes Ravi, yes. जब ऊपर लिखा हुआ है AOP तो why are you asking it again? ऊपर लिखा हुआ है ना AOP BOI. आ जाओ गाइस. चलो जी, 41,400 is the first answer. 41,400 is the first answer. Followed by guys हमारा आया था 96,000, the second answer जो हम लोग निकाल लिए थे. And third answer is 2,61,600. 2,61,600. ये वादा करो दोस्तों, लिख के कर रहे हो ना. Promise me that you guys are writing it down. If you are not writing it down, there is no point attending my session.
there is no point wasting 2 minutes on to matlab waiting. It is very very important that you are writing it down. आ जाओ भाई. अब दोस्तों इधर देखिएगा. Conditions to be satisfied for availing the default tax regime, जिसे concessional rates of taxes के नाम से भी जाना जाता है. न्यू regime, concessional rates of taxes, या दोस्तों अपन बोलें तो default tax regime is now the best word to use it. कहते हैं the following are the conditions to be satisfied for availing concessional rates of tax. मतलब the following are the conditions to be satisfied for availing 115 BAC. The following are the conditions that needs to be satisfied for availing the default tax regime. आ जाओ guys. Certain deductions and exemptions are not allowable. जो एक इंसान को normally allowed होता है, but if you wish to follow 115 BAC, if you wish to follow the default tax regime, there are certain deductions, there are certain exemptions that shall be restricted, that shall not be allowed. तो कहते हैं certain deductions, exemptions not allowable, जिसमें पहला पॉइंट आता है दोस्तों सैलरी चैप्टर से. अब मैंने इसको क्या किया, इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि इजी वे में अपन इसको कवर अप कर सकें, इसे चैप्टर वाइज डिकोड किया. बहुत लंबी लिस्ट थी दोस्तों, और अभी भी बहुत लंबी लिस्ट है. ये देखो लंबी लिस्ट है, 2 पेज तक जा रही है. ऑलराइट गाइस, तो इसमें क्या किया, उसको चैप्टर वाइज ब्रेकअप कर दिया. अब इधर देखिएगा, इधर देखिएगा गाइस. सबसे पहला दोस्तों लीव ट्रैवल कंसेशन, LTC. सैलरी चैप्टर में दोस्तों याद आ रहा होगा आपको कि अगर आपको मैं आपके फैमिली सहित इंडिया में घूमने के लिए भेजता हूं, इफ आई अलाउ यू टू विजिट इंडिया विद योर फैमिली, तो आपको डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ ट्रैवल देयर आर एग्जेम्पशंस दैट आर ग्रांटेड. However, if you are following 115 BAC, no exemption shall be granted. Followed by section 1013A HRA, followed by section 1014. अब 1014 में आते हैं आपके अलाउंसेस. 1014 में कौन से आते हैं दोस्तों, अलाउंसेस. अब there are allowances which are allowed, there are allowances which are not allowed under 115 BSA. So what I'm going to do is I'm going to have a detailed discussion in salary chapter. सैलरी चैप्टर में डिटेल डिस्कशन होगा कि कौन कौन से अलाउंसेस हैं जो आपको अलाउड नहीं है, और कौन कौन से अलाउंसेस हैं जो आपको अंडर सेक्शन 115 BAC अलाउड है. HRA अलाउड नहीं है, लेकिन अगर आपको ध्यान आए देयर आर सम स्पेसिफिक अलाउंसेस. पहले 6 अलाउंसेस होते थे, TA, DA, CA, HA, UA, AA. ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस. उसके बाद आपके कुछ अलाउंसेस होते थे जहां पर लिमिट्स होती थी, जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन. हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस 300 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन. ट्राइबल एरिया अलाउंस 200 पर मंथ. ये वाले दोस्तों, तो व्हाट आई एम गोना डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि आपको सारे के सारे सैलरी चैप्टर्स के पॉइंट अभी ध्यान नहीं होंगे, अभी आपको ध्यान नहीं होंगे, तो व्हाट वी आर गोना डू, हम लोग क्या करने वाले हैं गाइस, हम यहां पर बस ये समझेंगे कि देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन अलाउंसेस, देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन लीव ट्रैवल कंसेशन, एंड देन देयर आर रिस्ट्रिक्शंस अंडर डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 एक्सेप्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन. ऑलराइट गाइस, पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन भी अलाउड नहीं होता था, पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन भी अलाउड नहीं होता था. बट एज पर द फाइनेंस एक्ट 2023 विच इज एप्लीकेबल फॉर यू, FA फाइनेंस एक्ट 2023 जो आपके लिए एप्लीकेबल है गाइस, क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन अब क्या अलाउ कर दिया गया है? द आंसर इज यस. इंपॉर्टेंट नोट, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a) of 50,000 is now admissible to assessee following new regime under section 115 BAC. Followed by entertainment allowance and professional tax. Entertainment allowance and professional tax not allowed.
ये अलाउड नहीं है। एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड प्रोफेशनल टैक्स इज स्टिल नॉट अलाउड। ओनली स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 का है वो अलाउ कर दिया गया है। फॉलोड बाय दोस्तों सेक्शन 10AA, डिडक्शन मिलती है किसको? स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट को। मैं रिवाइज करवाते हुए चलता हूं। पहले 5 साल 100% ऑफ द प्रॉफिट्स इन रिलेशन टू एक्सपोर्ट शैल बी एग्जेम्प्ट, अगले 5 साल 50%, और उसके अगले 5 साल 50% प्रोवाइडेड द प्रॉफिट्स आर ट्रांसफर टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट। याद आ रहे हैं? But if you follow the default tax regime, if you follow 115 BAC, deduction under section 10AA is not allowed. Section 1032, exemption in respect of minor child, छोटे बच्चे की इनकम बिना मेहनत के या स्किल टैलेंट के अगर कोई होती है तो माता या पिता जिसकी इनकम ज्यादा है उसके में जोड़ दी जाती है। हाउएवर मम्मी पापा को एग्जेम्पशन मिलती थी, और कितने की एग्जेम्पशन मिलती थी? 1500 रुपए पर एनम, 1500 रुपीज पर एनम की मिलती थी। ये अपन क्लबिंग वाले चैप्टर में सीखेंगे। वो 1500 रुपए पर एनम वाली छूट अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम फॉलो कर रहे हैं तो नहीं है, नॉट अलाउड। सेक्शन 24B, सेक्शन 24B, इंटरेस्ट ऑन लोन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखेंगे गाइस, तो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन अलाउड नहीं है। बट लेट आउट प्रॉपर्टी है, देन इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन अलाउड है विदाउट एनी लिमिट। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में 2 लाख रुपए तक की लिमिट होती थी गाइस, इफ यू गाइस रिमेंबर। अगर आप 115 BAC फॉलो कर रहे हैं तो फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन नहीं मिलेगी। बट इफ यू आर फॉलोइंग द ओल्ड रिजाइम, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में 2 लाख रुपए तक की डिडक्शन मिलेगी, और लेट आउट के केस में नो लिमिट। लेट आउट के केस में इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजाइम देयर इज नो लिमिट। एडिशनल डेप्रिसिएशन, ये पीजीबीपी चैप्टर में पहुंच गए, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, और नॉर्मल डेप्रिसिएशन विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 40%। साइंटिफिक रिसर्च एंड सोशल साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, सोशल साइंस एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च, सेक्शन 35 की सीरीज, अगर आप इन हाउस कर रहे हैं तो अलाउड है, बट इफ यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आउटसाइडर्स इट इज नॉट अलाउड। अगर आप इन हाउस कर रहे हैं तो अलाउड है, खुद अपना साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं तो 100% की डिडक्शन मिलेगी। बट इफ यू आर नॉट डूइंग साइंटिफिक रिसर्च बाय योरसेल्फ एंड यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अदर्स, इट इज नॉट अलाउड अगर इफ यू आर फॉलोइंग 115 BAC। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप ऊपर से लेकर नीचे तक देखें तो देयर आर पॉइंट्स विच रिलेट्स टू वेरी डिफरेंट चैप्टर्स गाइस, अलग अलग चैप्टर से डील आउट करते हैं। तो एट दिस गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इट विल बिकम एक्सट्रीमली डिफिकल्ट कि कोई पॉइंट किसी चैप्टर का और मैं उस चैप्टर को पढ़ाना चालू कर दूं। तो व्हाट आई हैव डन इज इन एवरी चैप्टर जब वो पॉइंट आया मैंने उस पॉइंट से जुड़ा हुआ लिखा कि ये वाला पॉइंट आपको अलाउ नहीं किया जाएगा इफ यू आर फॉलोइंग द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम। फिर सेक्शन 35AD, आपके 14 स्पेसिफाइड बिजनेसेस, जहां आपको 100% की डिडक्शन मिलती है ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एसेट्स एक्सेप्ट लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। याद आ रहा होगा, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, हॉस्पिटल विद एटलीस्ट 100 बेड्स फॉर पेशेंट्स, होटल ऑफ 2 स्टार और अदर अबव कैटेगरी। याद आ रहा है, इनलैंड कंटेनर डिपो एंड कंटेनर फ्रेट स्टेशंस, warehousing facility for storage of agricultural produce। ये सारे पॉइंट सेक्शन 35AD में आते थे। फिर नेक्स्ट सेक्शन 57(2)A जो क्या बोलता है, फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन पहले अलाउड नहीं था, अब अलाउ कर दिया गया है। क्या बोलते हैं, फैमिली पेंशन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से जुड़ा हुआ, जहां पर 15,000 और 33.33% विच एवर इज लोअर की आपको दोस्तों डिडक्शन मिलती थी, वो आज भी मिलेगी, चाहे irrespective of the regime that you are following। Deduction in respect of family pension under section of 15,000 or 33.33%, whichever is lower, is now allowed to assessee following 115 BAC। All right, guys. So do not worry about it कि यहां पर तो सर हमें बहुत कम समझ में आ रहा है,
यहां पर कम ही समझ में आएगा। एक पॉइंट में अगर 10 चैप्टर्स हैं तो 10 चैप्टर्स के पॉइंट एक साथ समझ में नहीं आ सकते। इट इज जस्ट दैट कि वो एक लिस्ट बनी हुई थी और मेरे को भी वो लिस्ट लिखनी पड़ी अपने नोट्स में। अब आ जाओ 80C से 80U के डिडक्शंस। 80C से 80U के डिडक्शंस गाइस, जो कि चैप्टर 6A के आते हैं, वो अलाउड नहीं करे जाएंगे अदर देन 3। पहला, अगर एनपीएस में जमा कराया अंडर सेक्शन 80 CCD2, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टू अग्निपथ स्कीम अंडर सेक्शन 80 CCH2 एंड डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज अंडर सेक्शन 80 JJAA। तो 3 सेक्शंस ऐसे हैं 80 CCD2, 80 CCH2 एंड 80 JJAA। ये 3 सेक्शंस में आपको ओल्ड रिजाइम एज वेल एज डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम दोनों में अलाउड होगा। बाकी ऑल द अदर सेक्शंस ओनली ओल्ड रिजाइम। 3 सेक्शंस कौन कौन से? 80 CCD2, 80 CCH2 and 80 JJAA. These are the 3 sections, guys. Moving on, certain losses not allowed to be set off while computing total income, जिसमें ध्यान रखना है एक पॉइंट का, बाकी डिटेल डिस्कशन मैं आपका करवाऊंगा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस में, कि आपका हाउस प्रॉपर्टी, ध्यान से सुनना, हाउस प्रॉपर्टी इंटरहेड करा जा सकता है। आपको याद है ना दोस्तों, हाउस प्रॉपर्टी इंटरहेड करा जा सकता है अप टू 2 लाख रुपीस। अप टू 2 लाख रुपीस हाउस प्रॉपर्टी लॉसेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इंटरहेड इनकम्स up to 2 lakh rupees. However, if you are following 115 BAC, house property loss cannot go interhead. हाउस प्रॉपर्टी लॉस इंटरहेड नहीं जा सकता, इंट्राहेड हो सकता है। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से हो सकता है, नो डाउट अबाउट इट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप पीजीबीपी इनकम से कर दें, तो 115 BAC में इंटरहेड अलाउड नहीं है। वो आप अगर आपको करना है तो आपको ओल्ड रिजाइम ही फॉलो करना पड़ेगा। Everyone clear about it? So these are the terms and conditions which at this point of time I am assuming I have just given an overview and we have not completed all the terms and conditions. No way. But we are going to complete it, guys, जब हम respective chapters में पहुंचेंगे। जब हम रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में पहुंचेंगे तो वहां मैं करवाऊंगा और वहां पर आपके नोट्स में लिखवा दूंगा गाइस, एंड दैट इज व्हेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब जैसे इससे जुड़ा हुआ नोट है, अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये नोट आपको कब समझ में आएगा दोस्तों? दिस नोट विल बी मेड टू यू, मतलब दिस नोट इज व्हाट वी आर गोना अंडरस्टैंड वंस वी रीच एट दैट लेवल। पीजीबीपी चैप्टर पे पहुंचेंगे तब समझ में आएगा। टाइम टू डू अ क्वेश्चन गाइस, टाइम टू डू अ क्वेश्चन। ऐसे तरीके का क्वेश्चन आता है 15 नंबर में, इतना छोटा सा, अरे इतना छोटा सा नहीं, मतलब जब टैक्स लायबिलिटी निकालने की बात आती है तो ऐसा आता है। इधर देखिएगा, मिस्टर पवन एजेड 74 years रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज अ टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम का दूसरा नाम होता है टोटल इनकम। After claiming deduction under section 80C of 1,40,000, 80C में डिडक्शन लिए 1,40,000 की, उसके बाद टैक्सेबल इनकम 8,30,000 रुपए आई, 8,30,000 रुपीज आई। He wishes to pay minimum tax liability advice. अब guys, this is an important question and this is a superb question. अब अगर क्वेश्चन में आपके ऐसा आ जाए कि एक इंसान मिनिमम टैक्स लायबिलिटी पे करना चाहता है, इसमें उन्होंने रिजाइम नहीं बताया कि वो डिफॉल्ट रिजाइम फॉलो कर रहा है या ऑप्शनल टैक्स रिजाइम फॉलो कर रहा है, जिसे अपन ओल्ड बोलते हैं। इन्होंने रिजाइम नहीं बताया, उन्होंने क्या बताया? सामने वाले की इच्छा बता दी कि भाई साहब हमारे जो हैं वो क्या फॉलो करना है, वो क्या करना चाहते हैं, वो कम से कम टैक्स देना चाहते हैं। तो अब आपको दोनों रिजाइम से कैलकुलेशन करना होगा। अब आपको दोनों रिजाइम से कैलकुलेशन करना होगा, और जिसमें मिनिमम टैक्स आएगा
that is what you will have to advise him. That is what you will have to advise Mr. Pawan. तो अपन लोग दोस्तों पहले करते हैं दोस्तों, यहां पर कोई सा भी ले लो, पहले ओल्ड, दूसरा यहां पर डिफॉल्ट। ठीक है ना? अब मेरे को बताइए, आप लोग ही खुद सोच समझ के बताइए, क्या ओल्ड रिजाइम में डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C मिलती है? क्या ओल्ड में डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C मिलती है? हाँ जी सर, ओल्ड में ही तो डिडक्शन अलाउड है। करेक्ट। डिडक्शन लेने के बाद ऑफ 1,40,000 मेरी इनकम 8,30,000 रुपए, मतलब पवन जी की इनकम 8,30,000 रुपए, तो क्या हमें अब 8,30,000 रुपीज पर टैक्स निकालना पड़ेगा? द आंसर इज यस। तो टैक्स ऑन 830 डिडक्शन अलाउड है। अब दोस्तों इंटरेस्टिंग पॉइंट ये आता है कि अगर ओल्ड रिजाइम फॉलो कर रहे हैं तो उनका रेसिडेंशियल स्टेटस एंड एज मैटर करती है। रेसिडेंट ऑफ इंडिया 74 इयर्स, सीनियर सिटीजन, तो फर्स्ट 3 लाख रुपीज नील, नेक्स्ट 2 लाख रुपीज एट द रेट 5% 10,000 एंड रिमेनिंग दोस्तों 3.3 लाख रुपीज एट द रेट 20%। 3.3 का 20% निकल कर आएगा 66,000, टोटल निकल कर आएगा 76,000। एंड बिकॉज दे हैव नॉट आस्क्ड अस टू इग्नोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हम यहां पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगाएंगे, क्योंकि इन्होंने बोला नहीं है कि HEC को इग्नोर करो। HEC एट द रेट 4% 3040, टोटल निकल कर आता है 79,040। दिस इज योर टैक्स लायबिलिटी अकॉर्डिंग टू द ओल्ड रिजाइम। नाउ गाइज आई वुड वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू हेल्प मी आउट कि अगर वो डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम फॉलो करता है, इफ ही फॉलोज डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम, विल ही बी अलाउड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C? क्या 80C की डिडक्शन मिलेगी? 80C की डिडक्शन अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम मिलेगी ना? अब क्वेश्चन में ऐसे बोला है कि 80C की डिडक्शन लेने के बाद 8,30,000 है, और अगर 80C की डिडक्शन ना अलाउ करी जाए तो सर ये 1,40,000 रुपीज क्या हमें जोड़ना पड़ेगा? यहां पर 1,40,000 हमें जोड़ना पड़ेगा, तभी तो हमारी इनकम आएगी। क्योंकि क्वेश्चन में बोला है आफ्टर क्लेमिंग डिडक्शन ऑफ 1,40,000 अगर उनकी इनकम 8,30,000 आती है, डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम बोलता अरे भैया डिडक्शन तो अलाउड ही नहीं है, दिस डिडक्शन इज प्रोहिबिटेड, दिस डिडक्शन इज नॉट अलाउड, तो क्या हमें ये इनकम वापस, क्या हमें ये डिडक्शन एड बैक करना पड़ेगा? द आंसर इज यस। तो अब हम निकालेंगे गाइस टैक्स ऑन 9,70,000 रुपीज। 970 कैसे आया? 140 प्लस 830 970। इस पर टैक्स निकालिए गाइस एवरीबडी। फर्स्ट 3 लाख रुपीज नील, नेक्स्ट 3 लाख रुपीज एट द रेट 5% 15,000, नेक्स्ट 3 लाख रुपीज एट द रेट 10% 30,000, 9 लाख तक पहुंच गए। रिमेनिंग 70,000 एट द रेट 15% 10,500, टोटल कितना आया? 45,000 प्लस 10,500 55,500 एड HEC एट द रेट 4%। सब लोग कैलकुलेटर लेकर बैठे हैं ना, या मैं ही अकेला मेहनत करने में लगा हूं? कैलकुलेटर मस्ट है। जो बच्चे फोन पर कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट्स नॉट अ गुड साइन। 57,720। नाउ व्हाट आर यू गोना एडवाइस? मीरान ने एडवाइस कर दिया सर 115 BAC फॉलो करो, कोई डिडक्शन पिडक्शन मत लो,
क्योंकि आपकी 115 बीएसी में द टैक्स लायबिलिटी सब्सटेंशियली लो. What is the amount of tax liability that we are saving? 21,320. तो भाई साहब कह रहे थे हमने तो डिडक्शन ली है. पवन जी पुराने जमाने के डिडक्शन की बातें कर रहे हैं, न्यू रिजाइन पर फोकस ही नहीं कर रहे हैं. तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, दैट इज नॉट अ गुड साइन. पवन जी गलत बात, गलत बात. आइए गाइस इधर देखिए, 79,040 रुपीज, 57,720 रुपीज. कंक्लूजन आ गया. अब एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं दोस्तों. बच्चे कल पूछ रहे थे ना, राठी जी होमवर्क क्या है? आज आपका पहली बार होमवर्क चालू हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 13 इज होमवर्क. और ये होमवर्क दोस्तों आपको आज रात के 9 बजे तक, मैं टाइम काफी दे रहा हूं, आज रात के 9 बजे तक ग्रुप में शेयर करना है अपना क्वेश्चन करके. ऑलराइट गाइस, अगेन आपको यहां पर दोनों रिजाइम से फॉलो करने नहीं बोला है. कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिसेस रूही, रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अज्यूमिंग शी विशेस टू पे टैक्स अंडर 115 बीएसी. इसमें आपको कंपैरिजन नहीं करना, सिर्फ 115 बीएसी के तहत निकालना है गाइस. ओके एवरीवन, फोटो क्या फोटो लेनी है? वैसे तो आपके पास नोट्स हैं, ई बुक्स में आपके नोट्स है ना बेटा, फिर भी ले लो. फोटो लेना चाहो तो एक बार, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो. लिया गाइस? ओके चलो जी. ये इसका सॉल्यूशन. और नाउ कमिंग ऑन टू गाइस the last point for today's session. It's been 1 hour 17 minutes और 1 घंटा 17 मिनट से. होमवर्क का फोटो भेजना है क्या? हाँ ऑफ कोर्स यार विवेक भाई, मतलब सॉल्यूशन करके आपको ग्रुप में डालना है. ऑलराइट. टाइम लिमिट फॉर एक्सरसाइज ऑफ 115 बीएसी, 115 बीएसी का दोस्तों ये बहुत अच्छा पॉइंट है. मैं आपको पहले समझा देता हूं एंड देन आई एम गोना रीड इट आउट फॉर यू. मैं हर क्वेश्चन को ऐसे होमवर्क का आपको ग्रुप में भेजना नहीं बोलूंगा, सिर्फ आज का एक क्वेश्चन है इसीलिए बस मैंने बोल दिया ऐसे ही कि ग्रुप में भेजिएगा, जिससे पता चलेगा ना कितने बच्चे लिखकर और कैसे प्रेजेंट करके भेज रहे हैं. सब बच्चे अब अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, अच्छे से धीरे धीरे लिखेंगे. हाँ जी गाइस, अब इधर देखिएगा. सरकार ने क्या कहा, क्या आप डिफॉल्ट रिजाइम से ओल्ड रिजाइम जा सकते हैं, वापस आ सकते हैं? क्या आप ऐसे कर सकते हैं? मतलब 1 साल आपने डिफॉल्ट रिजाइम फॉलो किया, 1 साल आपने ओल्ड रिजाइम फॉलो किया, फिर उसके अगले साल ओल्ड फॉलो किया, फिर आपने डिफॉल्ट फॉलो कर लिया, फिर डिफॉल्ट फॉलो कर लिया, फिर ओल्ड में चले गए. मतलब क्या जब मर्जी एज अ मंकी कैन यू शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? क्या आप एक जगह से दूसरी जगह छलांग मार सकते हैं? तो सरकार ने कहा पहला पॉइंट, इफ नो इनकम अंडर हेड पीजीबीपी, अगर आप पीजीबीपी से इनकम नहीं करते, आपकी सैलरी से इनकम है, अदर सोर्सेज से इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से, कैपिटल गेन से, लेकिन पीजीबीपी से इनकम नहीं है, allowed to swap as many times as you want, allowed to swap. और ये वाला साइन तो आप लोग जानते हैं, इंफिनिटी टाइम्स, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं.
कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं। ऑल राइट गाइस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी ओल्ड कभी न्यू, कभी न्यू कभी न्यू, कभी न्यू ओल्ड 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 न्यू 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 ओल्ड न्यू ओल्ड 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 न्यू न्यू, जैसा करना चाहो करो, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ध्यान से देखिएगा, इफ इनकम अंडर हेड पीजीबीपी, अगर पीजीबीपी से इनकम है फिर क्या होगा? देन व्हाट इज गोना हैपन इन दैट केस? इफ यू हैव इनकम अंडर हेड पीजीबीपी, तो सरकार ने कहा, ध्यान से सुनना, मेरी पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस, एंड आई वुड वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू बी अटेंटिव। कहते हैं अगर आपकी पीजीबीपी से इनकम है तो हम मान के ऐसा चलते हैं कि आप डिफॉल्ट रिजाइम फॉलो करेंगे। आप क्या फॉलो करेंगे? डिफॉल्ट रिजाइम फॉलो करेंगे, लेकिन यू स्टिल हैव एन ऑप्शन टू एग्जिट एंड री एंटर डिफॉल्ट रिजाइम वंस। इसका क्या मतलब है? उन्होंने कहा कि अगर आपने 2023-24 लेट्स से 23-24 में आपने डिफॉल्ट रिजाइम फॉलो किया, उन्होंने कहा ये तो अच्छी बात है। अब अगले साल 24-25 में आपने ओल्ड फॉलो कर लिया, मतलब क्या आपने यहां पर डिफॉल्ट से एग्जिट कर दिया एक बार? क्या आपने डिफॉल्ट से एक बार एग्जिट करके ओल्ड में चले गए? चले गए। सरकार कहती है अब आपने एग्जिट कर दिया टू द ओल्ड, फॉलो द ओल्ड रिजाइम एज कंटिन्यूअसली एज पॉसिबल, यू कैन री एंटर वंस। आप वापस आ सकते हो डिफॉल्ट रिजाइम में एक बार, लेकिन जब वापस आ गए तो फिर आपको ओल्ड अलाउ नहीं किया जाएगा। मतलब डिफॉल्ट रिजाइम से बाहर एक बार जा सकते हो, वापस एक बार आ सकते हो, लेकिन एक बार अगर आप वापस आ गए उसके बाद आपके पास ओल्ड रिजाइम का ऑप्शन नहीं रहेगा। दिस इज व्हाट द पॉइंट इज। लेट्स से 25-26 में आपने ओल्ड फॉलो किया, क्या अलाउड है? अलाउड है। लगातार आप ओल्ड कितनी बार भी फॉलो कर सकते हो। उसके बाद 26-27 में, 26-27 में क्या आप न्यू फॉलो कर सकते हो? हाँ जी, आप न्यू फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन फॉलो न्यू, नो प्रॉब्लम इनटू दैट, यू कैन फॉलो न्यू। आप वापस आ गए, अब देखो दोस्तों, क्या आपने एंट्री मार दी? आपने एंट्री मार दी, हाँ जी। अब फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर, फ्रॉम द ईयर 27-28 आपको मैंडेटरली आपको न्यू ही फॉलो करना पड़ेगा। एक बार एग्जिट मारकर एक बार एंट्री कर दी, उसके बाद आपको न्यू ही फॉलो करना पड़ेगा। मैं एक बार स्क्रीन से हट रहा हूं सो दैट आपको क्लियरली नजर आए। नाउ 27-28, 28-29, 29-30, यहां पर आपको न्यू वाला ही 115 बीएसी ही फॉलो करना पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन नहीं है, यू डू नॉट हैव एन ऑप्शन टू गो इन द ओल्ड रिजाइम। आप ओल्ड रिजाइम में नहीं जा सकते हैं गाइस, नो ऑप्शन ऑफ गोइंग इनटू द ओल्ड रिजाइम। अब बात ये आती है, राठी जी डाउट आया हमारे मन में, मैंने कहा आना ही था, पूछिए क्या डाउट है। कह रहे राठी जी, इन द ईयर 2028-29 हमारी पीजीबीपी से कोई इनकम नहीं है। तो जब अगर पीजीबीपी से इनकम नहीं है भाई, तो आप पहली कैटेगरी में आ गए ना, मतलब फिर क्या हम ओल्ड में जा सकते हैं? जा सकते हैं। अगर 28-29 में पीजीबीपी से 1 रुपए की भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, 1 रुपए की भी कोई इनकम नहीं है, पीजीबीपी आपके इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो फिर आप स्वैप कर सकते हैं। सर ये तो अच्छा तरीका है ना कि 28-29 में हम पीजीबीपी, हम अपना बिजनेस नहीं दिखाएं, बिजनेस बंद कर दें और फिर 29-30 में फिर से चालू कर दें। 29-30 में राठी जी पीजीबीपी है तो फिर मैंडेटरी न्यू में ही आना पड़ेगा। एक बार एग्जिट कर एक बार आप एंट्री ऑलरेडी कर चुके हैं। आप सरकार को बुद्धू नहीं बना सकते। आप सरकार को ऐसा नहीं बोल सकते 1 साल तो हमने बिजनेस नहीं किया, उसके बाद जाके अब हम बिजनेस कर रहे हैं, चलो एक बार और एग्जिट और एक बार और एंट्री और।
ऐसा नहीं अलाउड है। एवरीवन क्लियर अबाउट इट? और दोस्तों, आप अपना 1 साल क्या बिजनेस बंद रखोगे क्योंकि आप रिजाइन चेंज करना चाहते थे? लॉजिकल लग रहा है? द आंसर इज नो। अब इधर पढ़ते हैं दोस्तों, इधर देखिए, कहते हैं द न्यू टैक्स रिजाइम हैज बीन मेड एज द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम। सॉरी, the new tax regime has been made as the default tax regime. It means the assessee will automatically fall under the new regime while filing his income. ये तो माना जाएगा कि आप न्यू रिजाइम, जिसे डिफॉल्ट रिजाइम बोला जाता है, वही फॉलो करोगे, लेकिन वहीं पर आपको ऑप्शन दिया जाता है। However, assessee will continue to have the option to avail the benefit of the old tax regime also. मतलब आपके पास ऑप्शनल टैक्स रिजाइम का भी ऑप्शन है। अब बात यह आती है, क्या हम कितनी बार स्वैप कर सकते हैं? कहते हैं फॉर असेसी हैविंग नो इनकम अंडर हेड पीजीबीपी, अगर पीजीबीपी से इनकम नहीं है, कैन चूज फ्रॉम ईयर टू ईयर, can choose from year to year. They may choose to exercise the option of 115 BAC in 1 year and not to choose the option in another year. However, for assessee having income under head PGBP, अगर PGBP से इनकम है, then the assessee can exit and enter the new regime under section 115 BAC only once. एक बार एग्जिट करके एक बार एंट्री कर सकते हो. दैट मीन्स एंट्री टू न्यू रिजाइम इज बाय डिफॉल्ट, बट द assessee can choose old regime. Thereafter, the assessee can make a re-entry in the new regime, but after such re-entry, no change can be made. कोई चेंज अलाउ नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट आपने बिजनेस प्रोफेशन ही बंद कर दिया, एक्सेप्ट बिजनेस प्रोफेशन बंद हो गया. सर अदर न्यू बिजनेस में अलाउ नहीं होगा? नहीं होगा शिल्पा, इंसान तो वही है ना यार, पैन नंबर थोड़े ना चेंज हो जाता है अगर मैं कोई बिजनेस चेंज कर रहा हूं. पहले मैं कपड़ों का बिजनेस कर रहा था, अब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस कर रहा हूं, मेरा पैन नंबर थोड़े ना चेंज हो जाएगा, मैं अभी भी वही रहूंगा. एवरीवन क्लियर अबाउट इट? मजा आया गाइस ऑन टू दिस पॉइंट? डिड यू गाइस enjoy today's session? चलिए जी गाइस, क्विक रिवीजन आज के सेशन का. आज हम लोगों ने बेसिस ऑफ चार्ज किया. बेसिस ऑफ चार्ज सेक्शन 4 ने हमें बताया कि आपके पांचों हेड्स की इनकम निकाली जाएगी डिपेंडिंग अपॉन द रेसिडेंशियल स्टेटस प्लस क्लबिंग माइनस सेट ऑफ, वी अराइव एट जीटीआई. जीटीआई में से हम डिडक्शंस माइनस करते हैं तो निकल कर आता है टोटल इनकम. टोटल इनकम प्रीवियस ईयर की निकाली जाएगी. प्रीवियस ईयर 23-24 की इनकम निकाली जाएगी इन द असेसमेंट ईयर 24-25 फॉर एवरी पर्सन व्हिच इंक्लूड्स नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. नेचुरल में इंडिविजुअल आता है एंड एवरी अदर कैटेगरी फॉल्स इन आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे कि कंपनी, फर्म, एचयूएफ, लोकल अथॉरिटी, ट्रस्ट एटसेट्रा एटसेट्रा. उसके बाद दोस्तों जब हम टोटल इनकम निकाल लेते हैं तो टोटल इनकम पर हम निकालते हैं टैक्स लायबिलिटी डिपेंडिंग अपॉन द रिजाइम दैट वी आर फॉलोइंग. उस टैक्स लायबिलिटी को निकालते वक्त कुछ स्पेशल रेट्स का ध्यान रखना है, सरचार्ज, रिबेट और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का ध्यान रखना है. जब हमारी टैक्स लायबिलिटी निकल जाती है तो हम उसमें से माइनस करते हैं टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, जितना भी टैक्स सरकार के पास पहले पहुंच चुका है वो माइनस करते हैं इन ऑर्डर टू अराइव एट द नेट टैक्स लायबिलिटी दैट वी नीड टू पे टू द गवर्नमेंट. दिस वाज बेसिस ऑफ चार्ज सेक्शन 4. उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा आगे बढ़े तो पता चला प्रीवियस ईयर में एक पॉइंट आया था, प्रीवियस ईयर फॉर न्यूली सेटअप बिजनेस. Previous year for newly set up business will start from the date of setting up of the business till the end of the financial year. इस चीज का ध्यान रखेंगे. उसके बाद दोस्तों हम लोग पहुंचे प्रैक्टिकल पोर्शन पर, जहां आज हम लोगों ने किया डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम अंडर सेक्शन 115 बीएसी. डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम अंडर सेक्शन 115 बीएसी में जाकर देखा कि एक इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई ने एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन को अलाउ करा गया है. Up to 3 lakh rupees, no tax. 3 lakh to 6 lakh, 5%. 6 to 9, 10%. 9 to 12, 15%. 12 to 15, 20%. And above 15 lakhs, 30% shall be levied. However, there are certain restrictions and deductions. सरकार ने कहा कि
कुछ डिडक्शंस, कुछ एग्जेम्पशंस जो हम नॉर्मली इंसानों को अलाउ करते हैं, बगैर अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम फॉलो कर रहे हैं तो हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। वी विल नॉट अलाउ यू, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। और उसके लिए दोस्तों एक बड़ी सी टेबल है जिसके कुछ थोड़े थोड़े चैप्टर्स में है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, अदर सोर्सेस, क्लबिंग, सेट ऑफ, डिडक्शंस, ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर हैज रिलेशन टू 115 बीएसई। तो अगर क्वेश्चन में आता है दैट यू नीड टू कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी in a way which is more beneficial for the assessee, then we will have to compute tax liability according to both the regimes. We will have to compare, और compare करने के बाद जो minimum tax liability आएगी, that is what we are going to follow. Finally हम लोगों ने पढ़ा कि भाई साहब what is the time limit for changing, what is the time limit for changing from old regime to new regime, default regime to old regime. तो सरकार ने कहा कि ऐसा मानते हुए चलते हैं कि आप डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम ही फॉलो करेंगे। जब आप इनकम टैक्स पोर्टल खोलेंगे तो माना जाएगा कि आप 115 बीएसई फॉलो करेंगे। However, you will have an option to switch to the optional tax regime, which is now known as the old regime. अगर आप 115 बीएसई, अगर आप बिजनेस प्रोफेशन नहीं कर रहे हैं, then you are allowed to switch from one regime to another according to your convenience. There is no restriction whatsoever. You will always choose the regime which is more beneficial to you if you do not have any income from business and profession. But if you have income from business and profession, then you can exit the default tax regime once, you can re-enter the default tax regime once, and after re-entering you will have to mandatorily follow the default tax regime as long as you are doing business and profession. All right guys, मजा आया in the quick revision? क्या मैंने सारे पॉइंट्स रिवाइज करवा दिए? मोस्ट लाइकली यस। चलो जी गाइस, anyone having any doubt whatsoever? We are done with 1 hour 30 minutes. We are done with in fact 1 hour 32 minutes. लेकिन अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो I'll be happy to help you out. Go ahead, shoot your doubt. Shoot your doubt guys, फटाफट बताइए। बाकी आप लोग ग्रुप में भी पूछ सकते हैं गाइस, देयर इज नो इशू रिगार्डिंग दैट। पूछना पड़ेगा। यू कैन ऑल्सो आस्क मी इन द ग्रुप एंड वी गोना मीट। अभी 6 बजे फिर मुलाकात करने वाले हैं फॉर जीएसटी। ऑलराइट, जीएसटी में जीएसटी के डाउट्स पूछेंगे, इनकम टैक्स में इनकम टैक्स के डाउट्स पूछेंगे। ऑलराइट गाइस, वैसे जीएसटी से जुड़ा हुआ मैंने ट्रू फॉल्स पूछा था, आधे बच्चे बुद्धू बन गए। उसका डिटेल डिस्कशन इन फॉलो इज गोना फॉलो इन जीएसटी सेशन। ओके, चलो जी, बाय बाय, अलविदा एंड सिया।